Hello students, today we will discuss about the anatomy of scalp. We will discuss only the anatomical part today, and in the next class we will discuss about the clinical or applied anatomy of this topic, that is scalp. So what is scalp? Now when you will see the scalp is a soft tissue. It is a soft tissue which covers the cranial vault. Now what do you mean by cranial vault? Cranial vault is actually the bony cap which you will see from above. So when you will see the cranial vault, this cranial vault is covered by a soft tissue is known as scalp. Now the scalp extends from the supraorbital margin anteriorly and to the superior knuckle lines at the back of the skull, and on the lateral side when you will see it down to the ear and zygomatic arch on the sides. Clear? So whenever you are reading the scalp, you should have first about the extension of this layer. So हम अगर पहली चीज ये चेक करें कि सुपीरियर नकल लाइन कहाँ होती हैं और सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहाँ होती हैं. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज योर posterior view and this is known as norma occipitalis. In this norma occipitalis, this is your external occipital protuberance. Now when you will see the external occipital protuberance on the side, what you are able to appreciate that these are the two lines which are going horizontally. Now these are known as superior knuckle line. Now in some bones you have one more line above that is known as highest knuckle line, but it is not a constant finding. Sometimes the highest lines are absent, but you will find one more line in the lower part that is known as lower knuckle line. Clear? तो जब भी आप पीछे से स्कल को व्यू करेंगे, that is norma occipitalis, so आपको ये प्रोट्यूबरेंस मिलता है और उसके साइड में you have the prominency of a pair of horizontal lines which are known as superior knuckle line. So ये हमारा posterior boundary है, that is the posterior extension of scalp. जब आप anterior extension की बात करेंगे तो this is your orbit and orbit के ऊपर का जो margin है, this margin is known as superior orbital margin. अब इस superior orbital के margin में you will have a small notch or the foramen at this place that is known as supraorbital foramen or supraorbital notch. Clear? तो हमने सबसे पहले ये चीज चेक की कि स्कैल्प जो है वो स्कैल्प क्या है. स्कैल्प एक सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है और स्कैल्प का जो एक्सटेंशन है वो अगर हम आगे से पीछे चेक करेंगे तो इट इज फ्रॉम द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द सुपीरियर नकल लाइन ऑन द पोस्टीरियर साइड. साइड्स के अंदर नॉर्मल लैटरली जब आप देखते हैं तो यू विल हैव द जाइगोमेटिक आर्च, सो इट विल एक्सटेंड टू द जाइगोमेटिक आर्च. Now the superior knuckle line it extends laterally from the external occipital protuberance जो भी हमने देखा, and they represent the boundary between the scalp and the neck. So this is the important thing कि अगर आप posteriorly you want to appreciate that हमारी neck कहाँ खत्म हो जाती है और scalp कहाँ से शुरू हुआ, तो उसके लिए line of demarcation क्या है, that is superior knuckle line. So superior knuckle line के नीचे क्या है, your posterior part of the neck. Clear? Now what are the important 5 layers of the scalp? Now this is very easy to remember because अगर आप यहाँ देखें तो जो 5 लेयर हैं जिनसे मिलके स्कैल्प बना है वो इसके हर स्पेलिंग के जो वर्ड्स हैं उनको रिसेंबल करता है. S for skin, C for cutaneous tissue, A for aponeurosis, L for loose areolar tissue and P for pericranium. So यहाँ पे you can see that यहाँ से हमने क्या किया कि एक छोटा सा सेक्शन लिया और सेक्शन लेने के बाद आप यहां पे उस सेक्शन में 5 लेयर देख रहे हैं. ये लेयर कैसे हैं? सबसे नीचे क्या होता है, यू नो दैट दिस इज द स्कल बोन. इस स्कल बोन से लेके और बाहर जो स्किन है उस स्किन से और बोन के बीच में हमारे पास टोटल 5 लेयर है. सबसे बाहर स्किन, स्किन के नीचे है C फॉर योर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर योर एपोन्यूरोसिस, L फॉर लूज एरियोलर टिश्यू एंड P फॉर पेरिक्रेनियम. ठीक है. सो दीज आर द 5 लेयर्स बिटवीन द स्किन एंड बोन. नाउ ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो सेकंड लेयर बना रहा है, दिस इज ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंस है. ठीक है. यहां पे जो एपोन्यूरोसिस है, ये एपोन्यूरोसिस किस मसल का है और इस एपोन्यूरोसिस का दूसरा एक और नाम है. सो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एपोन्यूरोसिस इज गेलिया एपोन्यूरोटिका, एंड दिस एपोन्यूरोसिस is actually extend not only in the center but it connects the muscles in front and back.
Apart from that, you have the fourth layer is known as loose tissue. Now this loose areolar tissue layer is important because this layer is known as dangerous layer of scalp. Then the innermost is pericranium. ठीक है, अब जो हमारा ये जो अरेंजमेंट है इसमें ये जो फर्स्ट थ्री लेयर हैं, these three layer from skin, connective tissue and aponeurosis, they work as a single unit. What is this? They are working as a single unit. ठीक है, मतलब ये हुआ कि when you keep your hand on the scalp and when you will move this like this, what you are moving actually, you are moving the three layers at a time. When you are moving your skin on the skull bone, you are actually moving these three layers as a single unit. ठीक है, so the strong connective tissue band traverses the superficial fascia, binding the skin to the underlying aponeurosis. मतलब क्या हुआ कि जो स्किन है और जो एपोन्यूरोसिस है इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास फाइब्रस बैंड होते हैं एंड दीज फाइब्रस बैंड्स आर पासिंग थ्रू दिस सेकंड लेयर. ठीक है, एंड ये जो हमारा अरेंजमेंट है, इस तरीके का अरेंजमेंट हमें बॉडी में कहां कहां मिलता है, जैसा आपने पाम में पढ़ा, जैसा आपने सोल में पढ़ा. इन केस ऑफ द पाम वी हैव सीन दैट द स्किन ऑफ द पाम is attached to the underlying palmar aponeurosis. ठीक है, और उसके बीच में भी क्या होता है, dense connective tissue. इसी तरह से ये जो स्किन है और ये जो एपोन्यूरोसिस है इनके बीच में क्या होते हैं, dense fibrous septa. और ये dense fibrous septa किससे बने, इस सेकंड लेयर से बने. ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करती है. ठीक है, अब यहां पे अगर आप इन पांचों लेयर का अरेंजमेंट देखेंगे तो ये जो आपका बोन है, इस बोन को आपको ध्यान रखना है. ये क्या है, दिस इज द सूचर लाइन, दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू स्कल बोन. अब ये जो बोन है, इस बोन से अगर आप सुपरफिशियली जा रहे हैं, देन you have the outer covering of the bone and outer covering of the bone is known as periosteum. और ये जो periosteum है, this periosteum is actually known as pericranium. अब इस पेरिक्रेनियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो पेरियोस्टियम या पेरिक्रेनियम है ये बोन के बाहर लूजली अटैच है, बट जहां पे सूचर लाइन है, सूचर लाइन मतलब जो जॉइंट है वहां पे जाके ये बोन के साथ चिपक गई है. ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहां की पेरियोस्टियम देखेंगे तो ये पेरियोस्टियम इस पे लूजली अटैच है, बट जहां पे सूचर है वहां सूचर पॉइंट पे इट विल गो एंड मर्ज विद द मार्जिन ऑफ योर बोन. ठीक है, उसके ऊपर क्या है, सो SCALP, क्लियर. सो पेरिक्रेनियम के ऊपर यू हैव नथिंग, only you have a space and that space is sub aponeurotic because that space is below the aponeurosis. ठीक है, तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज नोन एज सब एपोन्यूरोटिक स्पेस और लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये एपोन्यूरोसिस है. ये एपोन्यूरोसिस किस मसल का है, वी हैव ए मसल इन द स्कल एंड दैट मसल ऑफ स्कैल्प इज नोन एज ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस. उसके ऊपर आपके आ गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू और उसके ऊपर आ गया हमारा स्किन. ठीक है, अब जब आप डिसेक्शन करोगे तो डिसेक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्कैल्प है, इस स्कैल्प पे आपको एक क्रूशिएट फॉर्म में इंसिजन लगाना है. ठीक है, दिस विल गो इन द सजाइटल प्लेन एंड दिस इंसिजन विल गो फ्रॉम दिस साइड ऑफ ईयर टू द कोरोनली फ्रॉम अनदर साइड. अब यहां से आपको क्या करना है, चारों फ्लैप को चारों डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देना है. ठीक है, नाउ इट इज वेरी सिंपल. व्हाई, बिकॉज देयर इज ए सब एपोन्यूरोटिक स्पेस. ठीक है, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है. वंस यू विल पुट द इंसिजन यू कैन इजीली रिफ्लेक्ट आउट दीज पार्ट ऑफ योर स्किन. ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि आपने जब स्किन हटाई तो आपने एक साथ कितनी लेयर हटा दी, दिस इज ए 3 लेयर स्ट्रक्चर जो आपने रिफ्लेक्ट किया. ये 3 लेयर कौन कौन सी थी, SCA यानी स्किन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस. तो आपने ये तीनों लेयर जो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही हैं, इन तीनों लेयर्स को हटा दिया. और इसके नीचे की जो ये लेयर है, ये जो लेयर है वो कौन सी है, दैट इज ओवर लूज एरियोलर टिश्यू. अब जो पेरिक्रेनियम है वो पेरिक्रेनियम आपको यहां दिख रहा है. क्लियर. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी हम स्कैल्प के अंदर बात करेंगे लेयर्स की तो ये चीज याद रखनी है कि तीनों जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं दे वर्क एज ए सिंगल यूनिट. और जब डिसेक्शन में आप
फ्लैप हटा के साइड में रखोगे तो यू आर एक्चुअली डिसेक्टिंग द 3 लेयर्स एट ए टाइम. क्लियर? नाउ व्हाट इज अबाउट द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू? नाउ व्हेन यू विल सी द स्किन ऑफ द स्कैल्प इज ए थिक लेयर एंड इट इज हेयरी. ठीक है, कौन से टाइप का स्किन होता है? ये थिक वेराइटी ऑफ स्किन होता है एंड इट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड. दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेबेशियस सिस्ट. ठीक है, समटाइम्स यू हैव दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ सेबेशियस सिस्ट, उसके अंदर एक एग्जांपल है स्किन ऑफ योर स्कैल्प. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी फाइबर्स ऑफ द स्कैल्प मसल, दोज आर इंसर्टेड इनटू इट. ठीक है, नाउ ये जो चीज है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि जब हम फ्रंट की बात करेंगे, फ्रंट मतलब जब हम एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प की बात करेंगे, प्लस जब हम फेस की बात करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो मसल्स होती हैं दे विल इंसर्ट इनटू द स्किन. ठीक है, इसका यूज क्या है कि जब मसल्स स्किन में इंसर्ट होंगी तो हम स्किन को मूव कर पाएंगे. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल, इफ आई विल मूव द स्किन ऑफ माय फोरहेड देन यू कैन प्रोड्यूस द हॉरिजेंटल रिंकल्स. ठीक है, तो स्किन क्यों मूव कर रही है? क्योंकि स्किन को मसल मूव करा रही है, और स्किन को मसल इसलिए मूव करा रही है बिकॉज द मसल फाइबर्स आर इंसर्टिंग इनटू द स्किन. ठीक है, then it is firmly attached by the dense connective tissue, that means the second layer, to the underlying muscle and aponeurosis. ठीक है, so ये चीज मैंने अभी आपको समझाई कि जो स्किन होती है, ये स्किन अपने अंडरलाइंग एपोन्यूरोसिस के साथ जिस कनेक्शन से बंधी हुई है, ये कनेक्शंस क्या हैं? दीज आर द फाइब्रस स्टैंड ऑफ द सेकेंड लेयर, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. The vessels and the nerves runs within the second layer which unites the first and third layer. ठीक है, तो ये जो second layer होती है, इस second layer में होगा क्या? Apart from the fibrous band, it is having large amount of the nerves and vessels. The dense subcutaneous connective tissue has the richest cutaneous blood supply in body. Now this is again very important fact. Why? Because जब भी आप स्कैल्प की इंजरीज देखते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे स्कैल्प इंजरी के पेशेंट्स आते हैं, देन यू विल रियलाइज कि स्कैल्प इंजरीज में ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज होती है. क्यों प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है? बिकॉज ये यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लड वेसल्स रिट्रैक्ट नहीं हो पाती बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू उनको रिट्रैक्ट होने से रोकता है. ठीक है, सो द बेसिक नटशेल ऑफ दिस स्लाइड इज कि सबसे पहली चीज कि स्किन ऑफ स्कैल्प इज ए थिकेस्ट स्किन, it is hairy skin, it is a common site of sebaceous cyst, and the skin is connected to the underlying third layer or aponeurotic layer with the help of the second layer, and there are number of the muscle fibers, those will insert into the skin of your front or forehead. Now what is about the occipitofrontalis muscle? Now देखिए ये मसल है क्या एक्चुअली? हम इस मसल को यहां इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज देयर इज ए लेयर इज नोन एज एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. ठीक है, तो जब आपने पढ़ा स्किन, यू विल हैव क्यूटेनियस योर कनेक्टिव टिश्यू, देन यू विल हैव द थर्ड लेयर इज एपोन्यूरोसिस. नाउ ये जो एपोन्यूरोसिस है, ये एपोन्यूरोसिस किस मसल का पार्ट है? So ये जो एपोन्यूरोसिस है, दिस एपोन्यूरोसिस इज एक्चुअली कंसर्न विद द मसल नेम्ड इज occipitofrontalis. ठीक है, so it consists of 4 muscular quadrilateral parts. इस occipitofrontalis मसल को कितनी, अगर हम सब डिवीजन करें तो कितने पार्ट हो जाएंगे इसके? 4. ठीक है, so there are 4 quadrilateral parts, एंड ये जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट्स हैं, 2 आगे होते हैं और 2 पार्ट पीछे होते हैं. जो ये 2 आगे वाले पार्ट हैं, दे आर नोन एज फ्रंटल बेली, और जो पीछे वाले पार्ट हैं, दे आर नोन एज ऑक्सीपिटल बेली. क्लियर? सो व्हेन यू विल सी दिस occipitofrontalis मसल, इस occipitofrontalis मसल के अंदर हम पहले ये समझें कि देर आर 4 क्वाड्रिलेटरल मस्कुलर कंपोनेंट. ठीक है, नाउ each of them are connected by the epicranial aponeurosis, और इसका दूसरा नाम है Galea aponeurotica. This is the question of your exam. What is Galea aponeurotica?
ठीक है। तो ये जो चारों पार्ट हैं, ये चारों पार्ट अल्टीमेटली कनेक्ट किससे होने वाले हैं? एक एपोन्यूरोसिस से। लेकिन उसका एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि ईच ऑक्सीपिटल पार्ट और ऑक्सीपिटल बेली अराइजेस बाय द टेंडिनस फाइबर फ्रॉम लैटरल 2/3 ऑफ हाईएस्ट और सुपीरियर नकल लाइन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन एंड एक्सटेंड फॉरवर्ड टू जॉइन द एपोन्यूरोसिस। मतलब कि ये जो ओरिजिन है, यहां पे सेंटर में क्या है? इन द सेंटर यू हैव द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और सेंटर से हमने देखा कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से जा रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाई? सुपीरियर नकल लाइन, और इन सम स्कल यू मे हैव हाईएस्ट नकल लाइन। तो ये जो मसल्स हैं, दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम द मीडियल साइड, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल पार्ट ऑफ दीज नकल लाइंस। क्लियर? एंड ये जो दोनों आपकी मसल बेली हैं, दे आर नाउ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस एपोन्यूरोसिस। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो दो बेली हैं, दोनों बेली के बीच में एक गैप होता है। इस गैप को ये मसल फाइबर फिल नहीं करते, इस गैप को ये एपोन्यूरोसिस फिल करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहां याद रखना है। समटाइम्स यू हैव दिस पैटर्न इन एग्जाम। तो यहां पे ये जो पोस्टीरियरली मसल बेलीज हैं, इन मसल बेलीज के बीच में ये क्या है? एपोन्यूरोसिस। और ये एपोन्यूरोसिस का लोअर एक्सटेंशन कहां तक है? टिल दिस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड मीडियल पार्ट ऑफ द नकल लाइंस। क्लियर? So this is the important thing. Now the gap between the two occipital part is occupied by the extension of epicranial aponeurosis. So I just told you that the gap is filled by the aponeurosis but not by the muscle fibers, which extend up to the external occipital protuberance and medial part of highest knuckle line. ठीक है? तो ये जो extension है, ये medial part of highest knuckle line और external occipital protuberance तक होता है। ठीक है? Now what about the frontal belly? Now when you will see the frontal belly is adherent to the superficial fascia, particularly to the eyebrow. Now this is again the question of your exam. Here what you can see कि हम अभी पीछे जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि ऑक्सीपिटल बेलीज आर अटैच्ड टू द बोन, और उस बोनी कंपोनेंट का नाम था सुपीरियर नकल लाइंस और हाईएस्ट नकल लाइंस। बट यहां पे आप बोन नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप क्या पढ़ रहे हैं? It is adherent to the superficial fascia. It is not having any bony attachment. So this is the important question, that frontal belly is having no bony attachment. ठीक है? The fibers blend with the adjacent muscles, और वो adjacent muscles कौन कौन सी हैं? Procerus, corrugator superciliary and orbicularis oculi, and they ascend to join the epicranial aponeurosis. ठीक है? There is no attachment to the skull. That means the frontal belly is not having any bony attachment, and the right and left frontalis meet in the midline. ठीक है? जबकि ऑक्सीपिटल बेली मिडलाइन में आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन फ्रंटल बेलीज जो हैं, दे आर मीटिंग विद ईच अदर इन मिडलाइन। ठीक है? सो नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि ये आपकी फ्रंटल बेली है। ये फ्रंटल बेली आप देख रहे हो कि यहां मिडलाइन में यहां पे मिल चुकी हैं आपस में। ठीक है? जबकि ऑक्सीपिटल बेलीज आर रिमेन सेपरेटेड कंप्लीटली थ्रू आउट देयर अटैचमेंट। ठीक है? तो यहां पे अगर आप इस गैप को एप्रिशिएट करेंगे तो इस गैप में दीज मसल बेलीज आर रिमेन सेपरेटेड, बट यहां पे देयर इज ए पार्शियल, यू कैन सी द कंटिन्यूएशन और द मीटिंग पॉइंट। दूसरी चीज कि ये जो दो बेली हैं, इन दोनों बेलीज के बीच में this is the aponeurosis which is extending downward. This is the origin. Now the origin is from the highest or superior knuckle line. Here the muscles are not entering into the bone, but rather they are attaching with these bone muscles. These muscles are known as procerus and orbicularis oculi. ठीक है? So यहां पे ये चीज आपको समझनी है कि ये जो फ्रंटल बेली है और ऑक्सीपिटल बेली है, ये चारों बेली आपस में किससे कनेक्ट हैं? इस व्हाइट कलर स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और गेलिया एपोन्यूरोटिका। ठीक है? नाउ व्हाट इज द एक्शन? नाउ सप्लाई दैट विल सी। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द प्रोफाइल व्यू वेयर यू कैन सी दैट दिस इज योर फ्रंटल बेली, दिस इज योर ऑक्सीपिटल बेली, एंड इनको कनेक्ट करने वाली ये आपकी जो थर्ड लेयर है, दिस थर्ड लेयर इज नोन एज एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस।
ये जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस होता है ये लैटरली डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रहा है टिल दिस zygomatic arch. This is your zygomatic arch which is in front of this ear. So यहां पे ईयर के आगे आप zygomatic arch देख रहे हैं. इस zygomatic arch की अपर बॉर्डर तक ये जो आपका लैटरल एक्सटेंशन है ये नीचे अप्रोच करता है. ठीक है. नाउ what is about the nerve supply and action of occipitofrontalis? So there is a laterally aponeurosis band with the temporal fascia and it come down as a zygomatic arch. So where is the temporal fascia? Now this is actually the temporal region and this fascia which is covering the temporal area is known as temporal fascia. Clear? Now what is the action? That it contraction produces the wrinkles over the bridge of nose. So when the frontal villi will contract, you have the wrinkles on the forehead and here on the bridge of nose. It is supplied by the facial nerve. Now this is the question of your exam, that what is the nerve supply of occipitofrontalis? Both bellies are supplied by the facial nerve. ठीक है, दोनों बेलीज की नर्व सप्लाई अलग अलग नहीं है. द सप्लाई इज फ्रॉम फेशियल नर्व, बट द फेशियल नर्व की ब्रांचेस के नाम चेंज हो गए. द पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच विच सप्लाई द ऑक्सीपिटल नर्व, व्हाइल द टेम्पोरल ब्रांच सप्लाइज द फ्रंटालिस. बट ये दोनों ब्रांच है किसकी? फेशियल नर्व की. क्लियर? नाउ व्हाट इज अबाउट द पेरिक्रेनियम और द फिफ्थ लेयर ऑफ द स्कैल्प. So pericranium is the nothing but it is another name for the periosteum, and this periosteum is covering the outer surface of the skull bone, and this is rather loosely attached to the bone and easily strip off by the subperiosteal hematoma. What does it means? कि अभी मैंने आपको बताया कि सपोज ये एक स्कल बोन है और ये स्कल बोन की दो सूचर लाइंस हैं. ठीक है, दो सूचर लाइंस का मतलब ये हुआ कि यहां भी एक बोन है, यहां भी एक बोन है. अब इसके ऊपर जो हम बाहर की तरफ जो लेयर पढ़ रहे हैं दैट इज पेरिक्रेनियम. ये पेरिक्रेनियम इस बोन के ऊपर इजीली स्ट्रिप ऑफ हो सकती है, बट जहां पे सूचर लाइंस हैं वहां उन सूचर लाइंस पे जाके ये जो पेरिक्रेनियम है ये इस तरह से बहुत फॉर्मली अटैच हो जाती है. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर सपोज सब पेरियोस्टियल मतलब बिलो द पेरियोस्टियम यहां पे कोई ब्लड कलेक्ट हो गया तो ये जो ब्लड कलेक्ट हुआ है ये ब्लड इस और इस अटैचमेंट पॉइंट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएगा. क्यों? बिकॉज हियर यू हैव द अटैचमेंट ऑफ योर पेरिक्रेनियम विद द बोन. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट the pericranium is loosely attached to the bone but except here on the point of your suture lines. ठीक है, so because of this such a hematoma outlines the bone concerned since the pericranium is firmly attached at the sutures that is the margin of your bone. ठीक है, तो उस वजह से होगा क्या? होगा ये कि जब ये swelling enlarge होगी तो ये स्वेलिंग इस बोन का शेप ले लेगी. क्यों ले लेगी? बिकॉज ये इस बोन की मार्जिन्स के दोनों साइड एक्सटेंड नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज यहां पे यू हैव द टाइट जंक्शन बिटवीन द बोन एंड पेरियोस्टियम. क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ व्हाट इज अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. सो सबसे पहली चीज ये है कि स्कल की जो ब्लड सप्लाई है वो आती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस से. दूसरा जो ब्रांचेस है एक्सटर्नल कैरोटिड की वो असेंड करेंगी नेक से. क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल कैरोटिड इज नॉट एंटरिंग इनटू द स्कल. ये स्कल के बाहर रह जाती है इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल है. और ये चूंकि स्कल के बाहर रह गई तो इसकी जो भी ब्रांच आपके स्कैल्प को सप्लाई कर रही हैं वो गर्दन से असेंड करती हुई, नेक से असेंड करती हुई कहां पहुंचेंगी? आपके स्कल के अंदर पहुंचे, स्कैल्प रीजन में पहुंचेंगी. ठीक है, अदर ब्रांचेस ऑफ डीपर वेसल्स इन द हेड रीच द फेस थ्रू द फोरामिना इन फेशियल बोन्स. ठीक है, और जो डीप ब्रांचेस हैं वो डीप ब्रांचेस स्कैल्प को सप्लाई करने के लिए किसके थ्रू बाहर आएंगी? फोरामिन्स के थ्रू. और ये फोरामिन्स कहां हैं? फेशियल बोन्स के फोरामिना है. ठीक है, सो यू विल सी कि जब भी आप ओवरऑल स्कल पढ़ेंगे तो स्कल में कोई जरूरी नहीं है कि हर आर्टरी स्कल की फोरामिन से बाहर आए. जो एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस हैं दे आर रनिंग आउटसाइड, वाइल जो इंटरनल कैरोटिड की जो ब्रांचेस हैं दे विल कम आउट बाय
piercing the foramina, or there may be the branches of maxillary artery, those will come out by piercing the foramina of your facial bones. ठीक है, the arteries of the scalp are derived from the external carotid are, external carotid से कौन कौन सी arteries आप पढ़ोगे? Occipital artery, posterior auricular artery and superficial temporal artery, while you have the branches of internal carotid, that is supratrochlear artery and supraorbital artery. ठीक है, सो पहली चीज हमने ये समझी कि ब्लड सप्लाई का सोर्स क्या है. ब्लड सप्लाई का सोर्स है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरोटिड. दूसरा कि ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की जो ब्रांचेज हैं वो या तो फेस पे, नेक पे रन करती हुई स्कैल्प तक पहुंची हैं, या वो किसी बोन के फोरामिन से निकल के बाहर आके स्कैल्प को सप्लाई कर रही हैं. अब एक्सटर्नल कैरोटिड की कौन सी ब्रांच है? सो एक्सटर्नल कैरोटिड की स्कैल्प को सप्लाई करने वाली 3 ब्रांचेस के नाम आपको याद रखने हैं. ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड टेम्पोरल. ठीक है, सो इट इज नोन एज OTP, occipital, temporal and posterior auricular. While when you will see the internal carotid की 2 ब्रांचेस हम यहां पढ़ रहे हैं, supratrochlear and supraorbital, एंड ये सारी आर्टरीज फ्रीली एनास्टोमोस करती हैं इन द स्कैल्प. ठीक है, सो स्कैल्प इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर द एनास्टोमोसिस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. अब यहां पे ये आपका स्कैल्प है. अगर मैं यहां से इसका सेक्शन लूं, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा राउंड दिखेगा. क्लियर? नाउ यू हैव दिस ईयर एरिया, सो हम यहां पे ईयर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये आपका एंटीरियर पार्ट है, सो हियर दिस इज द नोज. नाउ व्हाट आर द ब्रांचेस? क्लियर? सो यहां पे आप ये देखिए कि दिस इज द वन ब्रांच विच इज सप्लाइंग हेयर. नाउ दिस इज द अनदर ब्रांच. नाउ यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप नॉर्मा फ्रंटालिस देखते हैं तो यहां पे एक फोरामेन है, दैट इज नोन एज सुप्राऑर्बिटल फोरामेन और सुप्राऑर्बिटल नॉच. सो सुप्राऑर्बिटल फोरामेन इज हेयर, सो यू विल हैव द आर्टरी, दिस इज योर सुप्राऑर्बिटल आर्टरी. ठीक है, नाउ उसके मीडियली और यू कैन से नियर द रूट ऑफ नोज you have a artery which is going upward, is supratrochlear artery. So here you will have the supratrochlear artery. ठीक है, so ये 2 ब्रांचेस जो हम आगे से पढ़ रहे हैं, one is supratrochlear, second is supraorbital artery. ठीक है, now we'll come to the area around the ear. now इस area around the ear में एक artery आप ear के आगे देख रहे हैं. now the artery which is anterior is known as superficial temporal artery. so this is your superficial temporal artery. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ईयर. ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ द ईयर यू हैव द 2 आर्टरीज. वन इज हेयर विच इज गोइंग लाइक दिस एंड वन इज हेयर विच इज गोइंग लाइक दिस. नाउ दीज आर द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी. सो दिस इज द ऑक्सीपिटल आर्टरी विच इज गोइंग लाइक दिस. क्लियर? सो यू विल हैव द 2 आर्टरीज हेयर. क्लियर? So when you will see the arteries, how many arteries are there? Total there are 5 arteries. And what are the name? अगर आप ईयर के रेफरेंस में नेम्स याद रखेंगे तो दे आर इजी. यहां पे ईयर के पीछे यू हैव द पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी, एंड हियर यू हैव द फर्स्ट ब्रांच इज सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, एंड दिस इज योर सुपरफिशियल टेम्पोरल. देन यू हैव पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल. सो इन दिस वे यू हैव द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प. सो ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प में आपको टोटल कितने नाम याद रखने हैं? 5. क्लियर? सो व्हाट इज द सीक्वेंस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर? सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी. नाउ if you will see this diagram, in this diagram you can see that this is your supratrochlear artery, this is supraorbital artery, this is superficial temporal artery, then you have the posterior auricular and occipital artery. Clear? Now venous drainage. Now this is again very important. देखिए वीनस ड्रेनेज जो होगा इसके अंदर जहां जहां आपने आर्टरी पढ़ी वहां वहां हमें वेन मिलेगी. सो वेन accompanies the artery and they drain not only the scalp but they also drain the cancellous bony part of your calvaria, that is your skull bone. तो जब आप स्कल बोन्स को देखेंगे तो स्कल बोन्स जो होती हैं, इन स्कल बोन्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 2 डबल टेबल अरेंजमेंट मिलता है. दिस इज नोन एज आउटर टेबल एंड दिस इज नोन एज इनर टेबल. Now between the outer and inner table you have the tissue, and this tissue is vascular tissue,
एंड ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, इस वेस्कुलर टिश्यू को जो ब्लड वेसल्स ड्रेन करती हैं, दोज वेन्स आर नोन एज डिप्लॉइक वेन्स. So diploic veins ब्लड कहां से लेके आते हैं? This is very commonly asked question that diploic veins drain the blood from which part? Answer is skull bone. Skull bone के अंदर जो ये vascular tissue है, this vascular tissue is known as diploy and this diploy is drained by the diploic vein. Now ultimately जितना भी venous blood है, that venous blood flow into either internal jugular vein or into the एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ठीक है, अब ये कैसे होता है? नाउ यहां पे अब हम सबसे पहले वीनस ड्रेनेज को समझे. सो वीनस ड्रेनेज को जब आप देखेंगे तो देयर आर सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन. अभी हमने देखा था यहां पे सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी होती है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है. उन्हीं आर्टरीज के अलोंग आपको दो वेन मिल रही हैं, सुप्रा ऑर्बिटल वेन एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन. ये दोनों वेन एंगल ऑफ योर आई, जो मीडियल एंगल है, इस मीडियल एंगल ऑफ आई के नजदीक आके दे विल मेक ए वेन इज नोन एज एंगुलर वेन बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ आई. सो द वेन इज नोन एज एंगुलर वेन एंड दिस एंगुलर वेन देन रन ऑब्लिकली ऑन द फेस एंड दैट इज नोन एज फेशियल वेन. ठीक है, सो हमने शुरू कहां से किया वीनस ड्रेनेज? हमने वीनस ड्रेनेज शुरू किया मीडियल एंगल से. सो ये जो आपका एंगल है, यहां पे ये दो वेन्स हैं, इन दोनों वेन्स ने मिलकर बनाई एंगुलर वेन, और ये जो एंगुलर वेन है, ये एंगुलर वेन कंटिन्यू कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फेशियल वेन. ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जब हम वीनस ड्रेनेज शुरू करेंगे तो हम दो वेन्स की बात करेंगे, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, और वो मिलके क्या बनाएंगे? एंगुलर वेन. एंगुलर वेन विल कम आउट एज ए फेशियल वेन. नाउ दिस फेशियल वेन विल गो डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ जाएगी. ठीक है, एंड दिस फेशियल वेन विल बिकम कॉमन फेशियल वेन, एंड ये जो कॉमन फेशियल वेन है, इट विल ड्रेन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन. ठीक है, सो द सुपरफिशियल. नाउ व्हाट इज द अनदर वेन? अनदर वेन इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन. ये टेम्पोरल वेन कहां मिलेगी? यहां पे हमने देखा था आर्टरी, आर्टरी के अलोंग मिलेगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, एंड दिस वेन विल जॉइन द मैक्सिलरी वेन एंड दे विल फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन. ठीक है, रेट्रो मतलब बिहाइंड, किसके बिहाइंड? मैंडिबल के बिहाइंड. सो दे विल फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन. द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन ड्रेन्स द स्कैल्प बिहाइंड द ईयर इनटू द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ठीक है, सो ये वेन कहां पे की थी हमने ओपन? ये गई इंटरनल जुगुलर वेन में, और ये जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर है, ये कहां गई? एक्सटर्नल जुगुलर वेन में. द वेन इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन. तो इन दोनों वेन्स के मिलने से कौन सी वेन बनती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन. एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे बनती है? इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर विद द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन that I will explain you in the next diagram near the mandibular angle. Now there is a one more vein that is on the posterior side along with the occipital artery. That vein is known as occipital vein, and this occipital vein reach to a plexus and that plexus ultimately drain into the vertebral vein. Clear? So जब भी आप venous drainage पढ़ेंगे तो venous drainage में वही veins हैं जो हमारी arteries के नाम थे. ठीक है, लेकिन यहां पे अब आप को याद कैसे रखना है? तो याद रखने के लिए सबसे पहले हम यूज लेंगे एक वर्ड जो है W. कौन सा वर्ड बनाना है हमें? W वर्ड बनाना है. कैसे बनाना है? सो सबसे पहले इस W के सेंटर पोर्शन की मैं बात करूंगा. ये जो सेंटर पोर्शन है, इस सेंटर पोर्शन का नाम है रेट्रोमैंडिबुलर वेन. इसका क्या नाम है? रेट्रोमैंडिबुलर वेन. ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन. क्लियर? अब ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन अब इस वाले पार्ट से मिलेगा. तो ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो पार्ट में डिवाइड हुई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. ये पीछे से कौन सा वेन आ रहा है? तो पीछे से एक वेन आ रहा है, दिस इज नोन एज योर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन. क्लियर? तो हमने अब ये W का इतना पोर्शन बना दिया पीछे वाला. क्लियर? सो ये दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन. सो यहां पे सेंटर में क्या है? रेट्रोमैंडिबुलर वेन. इस रेट्रोमैंडिबुलर वेन के दो डिवीजन हुए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. पोस्टीरियर डिवीजन ज्वाइन विद द पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और इन दोनों ने मिलके जिस वेन को बनाया, ये वेन कहलाई एक्सटर्नल जुगुलर वेन. व्हाट इज दैट? एक्सटर्नल जुगुलर वेन.
So here you can see that this is the retromandibular vein, this is its posterior division, this is posterior auricular vein, and here you have the external jugular vein. Now ये जो anterior component है, anterior division, अब ये वाला part क्या है? This is your common facial vein. What is that? Common facial vein, और ये दोनों मिलके बनाएंगे the common facial vein, और ये common facial vein जाके open किस में हो जाएगी? Internal jugular vein में. So this is internal जुगुलर वेन, ये जो वेन बनी दिस इज कॉमन फेशियल वेन, ये कौन सी वेन आ रही है ऊपर से? फेशियल वेन, ये है एंटीरियर डिवीजन। फेशियल वेन कैसे बनती है अभी हमने देखा, इट इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ टू वेन्स, सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल वेन। ठीक है, सो यू कैन सी दैट यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ द डब्ल्यू। सो इस डब्ल्यू के अंदर क्या क्या था? इस डब्ल्यू के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है, ये है फेशियल वेन, क्लियर, ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और ये बीच में है रिट्रोमैंडिबुलर वेन। इस रिट्रोमैंडिबुलर वेन का ये है एंटीरियर कंपोनेंट, ये है इसका पोस्टीरियर वन। एंटीरियर कंपोनेंट ने फेशियल वेन के साथ बनाया कॉमन फेशियल वेन, कॉमन फेशियल वेन ओपन इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, व्हाइल this posterior auricular vein and posterior vein will form the external jugular vein, and external jugular vein will go downward and open into the subclavian vein. ठीक है, सो यहां पे ये बहुत इजी हो जाता है टू कीप दिस थिंग इन माइंड विद दिस डायग्राम कि ये जो स्कैल्प है, इस स्कैल्प का वीनस ड्रेनेज कैसे होता है। ठीक है, स्कैल्प का वीनस ड्रेनेज ऊपर से नहीं होता है, स्कैल्प का वीनस ड्रेनेज अल्टीमेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इमेजरी वेन? नाउ ये एक टर्म और आता है जब भी आप एग्जाम में होते हैं कि व्हाट इज इमेजरी वेन। सो इमेजरी वेन्स आर द वेन्स दोज ट्रेवर्स द क्रेनियल अपर्चर, यानी ये स्कल बोन के थ्रू जो छोटे छोटे माइन्यूट फोरामेंस हैं या अपर्चर हैं उनके थ्रू ये ट्रेवल करते हैं, एंड दे कनेक्ट बिटवीन द इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस विद एक्स्ट्राक्रेनियल वीनस साइनस। यानी जो हमारी स्कल बोन्स हैं, इन स्कल बोन्स के अंदर और बाहर का जो वीनस सिस्टम है, उस वीनस सिस्टम को ये इमेजरी वेन्स कनेक्ट करती हैं। ठीक है, सो दिस इज योर स्कल बोन। इस स्कल बोन के बाहर और अंदर के वीनस सिस्टम को कौन कनेक्ट करता है? आंसर इज इमेजरी वेन्स। क्लियर? नाउ these are relatively constant, some are relatively constant, यानी कुछ imagery veins हमें हमेशा मिलती हैं, but some may not be present, they are not constant. These connections are of clinical significance because it determining the spread of infection from extracranial foci to the venous dural sinuses. ठीक है, मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि ये वेन किसी रीजन से यहां से रप्चर हो गया, इफ these veins will get rupture, then the bacteria can go inside the cranial cavity through this pathway. That's why these veins have very important clinical significance. They are also important because they provide an alternate drainage pathway in case of venous sinus thrombosis. मतलब ये हुआ कि अगर ये जो ड्यूरल वीनस साइनस है, इनमें अगर क्लॉटिंग हो जाए तो जो ब्लड है इट मे गो इनटू द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स। ठीक है, सो इमेजरी वेन्स क्या होती हैं ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। इमेजरी वेन्स आर द चैनल्स those connect your extracranial venous system and intracranial venous system, and they will pass through the minute foramens which are present in the skull bones. Clear? Now what is the lymphatic drainage of scalp? Now scalp does not have any kind of the lymph node, and the lymph from the scalp will go in the downward direction. ठीक है, सो स्कैल्प का जितना भी लिम्फ है वो किधर चला जाता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाता है? इधर इट में गो टू द ऑक्सीपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड और मैस्टॉइड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और यहां से फाइनली इट विल ड्रेन इनटू द डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है, सो ये चीज हमें याद रखनी है कि स्कैल्प के अंदर यहां टॉप पे स्कैल्प में कोई लिम्फ नोड नहीं होते। यहां जितना भी लिम्फ है वो किधर जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Now supply. Now this part is again your question of your exam. ठीक है, अब यहां पे जब आप स्कैल्प को ऊपर से देखोगे, ठीक है, हम जब ऊपर का इसका सुपीरियर व्यू ले रहे हैं, देन यू विल रियलाइज कि ये हमारे जो दो ईयर हैं, सो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट सप्लाई होता है सर्वाइकल नर्व से। किससे?
सर्वाइकल नर्व से, और जो एंटीरियर पार्ट है इट इज सोली सप्लाइड बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम स्कैल्प की नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं, ये चीज हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो किससे सप्लाई करना है, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस से, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किससे सप्लाई करना है, सर्वाइकल नर्व्स की ब्रांचेस से। ठीक है, the skin of posterior scalp is supplied by the sensory fibers which are the branches of cervical nerves, और इन cervical nerves के क्या नाम है, so there are names, one is greater occipital, third occipital, great auricular and lesser occipital। ठीक है, कितने नाम याद रखने हैं आपको, 4 नाम है। ये जो चारों ब्रांच हैं, ये चारों ब्रांच किधर सप्लाई करेंगी, पोस्टीरियर रीजन में, और ये चारों ब्रांच किसकी ब्रांच हैं, दे आर ब्रांचेस ऑफ C2 एंड C3, C2 एंड C3 सर्वाइकल नर्व्स। किसकी ब्रांच है ये, C2 C3 सर्वाइकल नर्व्स की। ठीक है, और इनके नाम जब आप देखेंगे तो ये जो हमारा ईयर है, इस ईयर के पास यू हैव द 2 नर्व्स, दोज आर सप्लाइंग द एरिया, वन इज योर great auricular nerve, auricle itself suggesting that the area of the area near the your skin near the ear, so you have the great auricular nerve, and इसके साथ जो major portion है यहाँ पे, this is supplied by lesser occipital nerve, while जो posterior most part है, ये posterior most part supply होता है greater occipital and third occipital nerve से। ठीक है, तो यहां पे है ग्रेट ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, देन यू हैव ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड थर्ड ऑक्सीपिटल नाउ विच इज पोस्टीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ यहां पे इस डायग्राम में आप ये देखिए कि ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे हम एक लाइन बना रहे हैं, इसके बाद ये लाइन अगर हम यहां ईयर तक मिला दें तो ये जो पीछे का स्कैल्प है, इस पीछे के स्कैल्प में कौन कौन सी ब्रांचेस आप यहां अप्रिशिएट करेंगे, तो कान के पीछे मैंने अभी आपको बताया, बिहाइंड द ईयर यू हैव दिस ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। नाउ दिस ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इज सप्लाइंग द एरिया ऑफ स्कैल्प बिहाइंड द ईयर, देन एडजेसेंट टू दैट यू हैव द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, एंड एडजेसेंट टू दैट यू हैव लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। पोस्टीरियर मोस्ट यू हैव द थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, एंड थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व के आगे वाला जो एरिया है, दिस इज सप्लाइड बाय ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। क्लियर, सो यहां पे कान के पीछे आप 4 नर्व्स देख रहे हैं जो कि हम सेंसरी नर्व्स की बात कर रहे हैं, और ये चारों सेंसरी नर्व किसकी ब्रांच है, C2 एंड C3 स्पाइनल सर्वाइकल नर्व्स की। ठीक है, इसके आगे का जो ये एरिया है, जितना भी आप ये एरिया देख रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ योर स्कैल्प इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, नाउ हाउ, यहां पे कौन कौन सी नर्व है, सो इन फ्रंट ऑफ द ईयर द स्कैल्प रीच थ्रू द फोरामिना इन बोन्स एक्सेप्ट द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो जितनी भी ब्रांचेस हम यहां पढ़ेंगे, ये सारी ब्रांचेस स्कल के किसी ना किसी फोरामेन से बाहर आ रही हैं, एक्सेप्ट ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व दैट सप्लाई द स्किन ऑफ टेम्पोरल एरिया। नाउ व्हाट आर द नेम ऑफ द नर्व्स, दोज विल सप्लाई ऑरिकुलोटेम्पोरल, zygomatic-temporal, supratrochlear एंड supraorbital नर्व। ठीक है, सो ये जो 4 नर्व हैं, ये नर्व कैसे हैं, तो देखिए वापस जो आपका आई है, उस आई के एंगल पे सबसे मीडियली यू हैव द सुप्राट्रोक्लियर नर्व। सुप्राट्रोक्लियर नर्व के साथ में यहां पे है सुप्राऑर्बिटल नर्व, सुप्राऑर्बिटल के बाद ये है आपकी zygomatic-facial नर्व एंड zygomatic-temporal नर्व, एंड यहां पे दिस इज योर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ठीक है, तो यहां पे जो आपने 4 नाम पढ़े, कौन कौन से, ऑरिकुलोटेम्पोरल, zygomatic-temporal, सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल, इसमें से अगर आप ब्रांचेस को चेक करेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये जो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है, ये ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व किसी भी फोरामेन से बाहर नहीं आती है, जबकि सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल दे आर कमिंग आउट हेयर, supratrochlear is coming out here, supraorbital from the supraorbital foramen, and this is your the zygomatic-temporal, यहां से ये zygomatic-temporal नर्व जा रही है। ठीक है, ये सारी किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमिनल की। ठीक है, ट्राइजेमिनल के हम जो 3 डिवीजन पढ़ते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। सो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन, while you have this ophthalmic division which is giving the supratrochlear and supraorbital nerve,
एंड दिस zygomatic टेम्पोरल नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन। ठीक है, सो यू विल रियलाइज कि जो स्कैल्प है इसकी जब भी आप नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं तो ये एंटीरियर पार्ट में तो क्रेनियल नर्व है और इसके इस पोस्टीरियर पार्ट में सर्वाइकल नर्व है, C2 एंड C3 की ब्रांचेस। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि स्कैल्प क्या होता है, scalp soft tissue में how many layers are there, what are the characteristic of each and every layer, what is occipitofrontalis muscle, what is galea aponeurotica, what do you mean by the blood supply and nerve supply of the scalp. Clear? In the coming class of the continuation of this lecture we will discuss about the applied aspect of the scalp. So this is all for today's class. Thank you.